Just wait for 1 more minute. Okay, I'll start the session at 11:05. Okay, no issue, ma'am. Okay. Sure, I'll share the recording in your particular groups. Okay, let's start the session now. Okay. Good morning again. Everyone, good morning. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, so before coming to the kind of definition part of today's session, or the main topic, I want someone to describe what is today's session is about. Ma'am, Kuldeep? today's session Yes. about the improving the profile on LinkedIn as well as Naukri.com on the basis of ATS score. Okay, so what do you think, Sachin? Like, this is a club session, like including all the three topics, or all other different No, one? Or ma'am, ATS is a category. On the basis of that, recruiter just shortlisted the candidate on the different sites like Naukri.com or LinkedIn. right. So ATS. Yes, I hope everybody knows about it. What is ATS and why it's needed? Is it? Yes, ma'am. Pinash, please mute yourself, dear. There's background noise coming from your side. Yes. Okay. So let me share my screen once. Okay, how many of you have taken this session, like the LinkedIn session before? This is my Anyone? first time. First time. First Great. time, ma'am. Okay, I have shared my screen. Is it visible to everyone? No, ma'am. What about now? Yes, ma'am. Okay, great. So अब मैं बता देती हूँ. Today's session is about the LinkedIn profile optimization. Okay, how to optimize your LinkedIn. Okay, you know na what is the meaning of optimization, right? Yes. Everyone, Yes, what is ma'am. optimization? Mohit, Yes, ma'am. what is optimization? Okay, Vivek. Not very clear, ma'am, from my side. Sikandar. Not very clear, ma'am, from my side. No, dear, not you're not audible to me clearly. Okay, Prachi, Gaurav, Abhishek. Ma'am, optimization simply means like making something effective or efficient. Efficient Yeah, useful and as useful. possible. Okay. Some other alternate words: increasing the chances. Increasing the chances of what? Shortlisting the resume. Shortlisting the resume. Okay, so the optimization words used only in the CV part? No, na? No, ma'am. Profile part as well. Gaurav, optimization? Ashish, Leela?
See, if nobody responds or behave like this, then I don't think so that this session could be kind of effective or optimized by me then. कुछ फायदा नहीं है फिर इसका. And Yes, Faisal. optimization, yes. Yes, Ma'am, Binash. Yeah, optimization means following the trend. It's what's going on that site, means inside and outside. What the keywords is working on that. Like if the LinkedIn, so if we are working on, if we are looking for the job change, so the which like किस चीज में ज्यादा उसका ओपनिंग्स आ रहा है वो सब देखना, उसको ऑप्टिमाइजेशन बोला जाता है. Okay. यानी फुल ऑन, जैसे अगर पाइथन है या फिर अगर कोई पावर बीआई पे, तो उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ऊपर, उससे रिलेटेड हम उसका सीवी अपना क्रिएट कर सकते हैं कि जो जो चीजें ऑप्टिमाइज होके ऊपर आ रही है, हाईली रेटेड कीवर्ड्स है, उसको अपने सीवी में ऐड कर सकते हैं. दैट्स कॉल्ड द if we are talking about the LinkedIn, so that's an upgradation, dear. That's not an optimization. That is an upgradation, according to the markets, according to the trends. Okay, Yes, yes. no issue. Let me tell you. Optimization, see, it's clearly an action of making anything in the sense, whether it's CV, whether it's any kind of machine, your phone, anything, okay, in a most effective way, okay, to use it. Simple? Ma'am, it is the best possibility approach where Right. we can get the job. Yes. Okay, then let me start it. So I'll include I'll cover like the 3 topics in this 1 hour session. First, it will be LinkedIn optimization profile. Like the second, includes the Naukri also, because LinkedIn and Naukri are totally coordinated, and we will talk about the ATS part too. Okay, so how to increase the chances of your shortlisting over the job platforms. Great. Yes. Shall I start? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so see, Yeah, there are like 50 optimization tips of, to enhance your profile, increase visibility, and boost engagement, right? So we are having, I guess, 10 headers, okay, 10 main points, जिनमें हमें काम करना है. I hope everyone is having their LinkedIn accounts, right? Yes, ma'am. If everyone is Yes, having ma'am. your LinkedIn account, huh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Great then. Okay. So let me start. This is the LinkedIn account, right? हम जो बात करते हैं, we are having our profile, the messaging system, the jobs part, right? The notifications, our network, okay, like the connections, some news, everything here. So what the first point says, the first point is about your profile picture and the banner. Okay, profile picture, the picture you post in the front, and the banner, which is cover photo. Okay, so use a professional profile picture. जो भी आप फोटो अपनी पोस्ट करोगे, you can't put a kind of back photo. आप अपनी कोई ऐसी just crop करके कोई picture नहीं लगा सकते हो. It should be high quality, a clear headshot. The kind of passport size, your face, your front face should be seen with a clean background, and dress appropriately for your industry, for the corporate part. You can't wear anything, okay? It's not an Instagram or Facebook account. It's a LinkedIn profile, right? So you have to choose a professional profile picture. Clear? इसमें किसी को doubt कुछ? No, ma'am. Great. Choose the right banner image. Banner image is the photo which you choose, in your cover page. Okay, so that is it. Okay, you need to choose a banner picture or related to your industry, related to your domain. Okay, you can also put a kind of professional or a personal banner, है ना, अपना नाम लिख के, your designation and some kind of, but आप कुछ भी ऐसा नहीं कि आप irrelevant कुछ भी लगा दो जो मैच ही ना करे आपके professionalism से. Good. And be consistent across platforms. Okay, ये main है. Be consistent means if you are using a profile picture on the LinkedIn, I insist to choose that profile picture on the Naukri, the same on the on the other job platforms such as
There are like Indeed, there are I guess Glassdoor, okay, Monster, Shine.com, right? So please be consistent across platforms because see company relate करने में और फोटो आपकी मैचिंग करने में ज्यादा इजी रहेगा उन्हें. ठीक है, इफ दे आर आपको अगर वो नौकरी पे देख रहे हैं, लेट सपोज आपकी प्रोफाइल, ओके, तो उनको आपको लिंक्डइन पे कनेक्ट करने के लिए इजी एक एक वे मिल जाएगा कि हाँ दिस इज द प्रोफाइल पिक्चर, द सेम प्रोफाइल पिक्चर, सो मे बी यही है वो, बिकॉज आपके नाम के सेम कितने सारे कैंडिडेट्स होंगे, राइट? सो इस तीनों पॉइंट्स में किसी को कुछ डाउट इन तीनों पॉइंट्स में? एनीवन? No, ma'am. No. No. Only 4 no's. What about the rest? No, ma'am. No, ma'am. No. No, ma'am. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम अपनी हेडलाइन पे. हेडलाइन हम किसे कहते हैं? दिस इज योर हेडलाइन. दिस इज ओके बिफोर योर बिलो योर नेम जो आप लिखते हो, दैट इज द हेडलाइन पार्ट. इसमें क्या लिखना है आपको उसके बारे में बताया जा रहा है. इंस्टेड ऑफ जस्ट लिस्टिंग योर जॉब टाइटल, सिर्फ अपना जॉब टाइटल इन द सेंस लेट सपोज आप डेटा एनालिस्ट हो, सो यू कांट जस्ट पुट अ डेटा एनालिस्ट देयर, इंक्लूड योर की स्किल्स आल्सो, समटाइम अचीवमेंट्स टू. ओके, फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, दिस इज योर जॉब टाइटल. ओके, and you can also mention helping brands grow online through SEO and content strategy. That is your key skill. Okay, so don't just put the job title in your heading line, also put the key skills part. Use keywords like for a better discoverability. Incorporate relevant इंडस्ट्री को नहीं चाहिए होता, लाइक चाहिए होता है आप कीवर्ड्स जो हो ना मैचिंग आपके हो. लेट सपोज डेटा एनालिस्ट है, डेटा एनालिस्ट क्या वर्ड्स यूज कर सकता है? पावर बीआई एक्सपर्ट, डैशबोर्ड्स मेकिंग, काइंड ऑफ एसक्यूएल डेटाबेस एंड एआई आल्सो. ठीक है, तो आप जो कीवर्ड्स आपको चैट जीपीटी या फिर और भी एआई प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे कि हाँ कीवर्ड्स रिलेटेड टू डेटा एनालिस्ट, वो सब आप मेंशन कर सकते हो उसमें हेडिंग पार्ट में. हाईलाइट योर वैल्यू प्रोपोजिशन. कोई ऐसी स्किल भी मेंशन करो या फिर यूनिक यूएसपी ऐसा मेंशन करो जो सबकी हेडलाइन में सबके अगर हम हेडलाइंस कंपेयर करें तो उसमें आपको अलग बनाए. लेट सपोज आपको डेटा एनालिस्ट आता है प्लस आपको जावा भी आता है, ठीक है, सो प्लीज डू मेंशन इट बिकॉज क्या पता कंपनी को वो यूजफुल हो कि हाँ यार इसको जावा भी आता है तो वी आर चूजिंग हिज प्रोफाइल देन. ठीक है, हर कोई आपकी सीवी में नहीं जाएगा, पहले वो आपकी 10 to 15 सेकेंड्स वो जस्ट आपकी ये गो थ्रू कर लेगा क्योंकि ये ब्ला ब्ला ब्ला, ओके दैट्स इट, वो बैक कर लेगा. ठीक है, तो अपना हेडिंग पार्ट इतना क्लीन रखो, इतना क्लियर रखो कि वो इम्पैक्टफुल रहे और कंपनी आपकी प्रोफाइल पे एटलीस्ट 30 सेकेंड स्पेंड करे. अगर वो 30 सेकेंड स्पेंड करे, आई गेस कि जो लिंक्डइन यूज करते हैं उनके पास नोटिफिकेशंस आती होंगी दैट 4 people notice them, 10 people notice them, is it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या तो वो इसलिए आती है बिकॉज आपकी प्रोफाइल पे कोई 30 सेकेंड से ज्यादा रुकता है. अगर कोई रुका है इन द सेंस दे आर गेटिंग इंटरेस्टेड अबाउट योर प्रोफाइल, ओके, वेदर दे आर एचआर कोई और आपके कनेक्शन में हो, ब्ला ब्ला ब्ला. सो तो आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई प्रोफाइल पिक्चर देख के बैक कर ले कि नहीं यार ये प्रोफेशनल नहीं है, बैनर कुछ इरेलेवेंट है, नहीं यार, क्योंकि उनके पास रिजेक्शन के 99 चांसेस है, सिर्फ एक चांस होगा कि वो आपकी प्रोफाइल पे स्टे करें. दैट इज योर हेडिंग पार्ट, योर प्रोफाइल पिक्चर एंड दिस थिंग, ओनली दिस थिंग. Okay, so please make it optimized. Please use some keywords and use a right profile picture for your LinkedIn profile. So we are done with this. Any doubt in the profile picture and the heading line? Headline? Yes, yes. Yeah, hi, Akansha. Yes. So, if someone is seeking any career in any profession, okay, and they are Okay. just transitioning their career, Uh-huh. so what would be the best keyword to put over there on that LinkedIn bio or that LinkedIn details? Like Sure. Can you please help me with the technologies? Same question is for me also. No, I'm asking about your technologies. From which technology you are transferring yourself to another one? Like those are unknown. Like we do not want to disclose. Like you can take any profession. Okay, anything, let me give you an example. Mhm. Okay. Just like I am I'm from meeting Bangalore you. sector. Okay, just a second here. See, Mhm. let's suppose I'm working in Chroma since 24.
Okay, now it's 25. Okay, it has been more than 1 year. But what about कि मैं उससे पहले मैं sales में काम करती होती, है ना? Yeah. तो I don't think so I should mention the sales part here. Yeah, अगर मेरा because डोमेन ही अब HR हो चुका है, ओके, yeah. एंड अब मैं सिर्फ सीख ही उसमें कर रही हूँ, तो जस्ट शो दैट पार्ट जो आप चाहते हो रिक्रूटर उस पे फोकस करे, ठीक Yeah, है? because इफ यू it won't मेंशनिंग create सेल्स a good impact. पार्ट 2, तो वो आपका वो भी काउंट करेगा एंड दे कैन कंसीडर यू फॉर दैट प्रोफाइल टू. Yeah, so it won't create a good impact. Like if we are Yes. putting our old organization or our old career over there, so it won't create a good impact, right? Right. And yes, one more thing, please do mention in your experience part too, क्योंकि उनसे आप कोई चीज छुपा के मत ही रखो, ज्यादा बेटर रहेगा. ओके, आप अपने एक्सपीरियंस पार्ट में प्लीज डू मेंशन इट दैट यू हैव वर्कड इन द सेल्स पार्ट सिंस 22 to 23 or 24. Okay, and now you have changed your domain into HR part. You can then mention your certification part in the experience part too above this. Yeah, sure. Okay. So next point is about your summary and the about section. Okay, tell your story. The about section is, this is about section. Okay, this is okay. मैंने ये लिखा नहीं है क्योंकि मुझे भी नीड है नहीं कुछ ऐसा, ठीक है? आपको इसमें एक प्रॉपर समरी लिखनी होती है अपने बारे में, जो आप लिखते हो कहाँ पर? अपने सीवी के ऑब्जेक्टिव में. ओके, आप लिखते हो, लेट मी चूज वन सीवी हियर. See, this part I'm talking. ठीक है, जो आप लिखते हो समरी अपनी सीवी में, वही सेम मेंशन करना होता है आपको अपने लिंक्डइन में. ठीक है, यहाँ पर जो आप मेंशन करोगे अबाउट सेक्शन में, यहाँ पे आप अपनी समरी लिखोगे दैट व्हाट एक्सपीरियंस यू आर हैविंग, इंडस्ट्री, स्किल्स और अपने अचीवमेंट्स के बारे में, और आपके प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस. जो आप इंट्रो देते हो ना एचआर को, वो सेम आपका यहाँ पर आएगा. आप नीचे फिर अपनी स्किल्स मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या आपको आता है, एंड देन यू कैन सेव इट हियर. और ये आपका बनता है अबाउट सेक्शन. ठीक है, इसमें किसी कुछ डाउट? No. नो मैम. ओके, No doubt. इंक्लूड की स्किल्स, अचीवमेंट्स मैंने बता दिया आपको. ठीक है, यूज अ कॉल टू एक्शन. कॉल टू एक्शन इन द सेंस, इनकरेज पीपल फ्रॉम वेयर, फ्रॉम योर सर्कल, फ्रॉम योर नोन, ओके, टू रीच आउट और विजिट योर वेबसाइट इन द सेंस टू प्रोफाइल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. ठीक है, वो जितना ज्यादा आपको नोटिस करेंगे, जितना ज्यादा आपके प्रोफाइल पे स्टे करेंगे. लेट सपोज हाउ इट वर्क्स, दिस इज एल्गो. ओके, you have to go with that algo, LinkedIn algo. So what happens if I'm having a new profile, okay, and let's suppose Binash, okay, Binash is noticing my profile. She is staying on my profile more than 30 seconds every day. Okay, so the friends, the connections of Binash will notice me too. Okay, मैं उनके सजेशन में जाऊंगी, मेरी पोस्ट उनके सजेशन में जाएगी, एंड मे बी उस बीनश के फ्रेंड्स भी फिर मुझे नोटिस करें. ठीक है, देन अगेन अगर बीनश के फ्रेंड्स मुझे नोटिस कर रहे हैं, तो बीनश के फ्रेंड्स भी मुझे नोटिस करेंगे. गेटिंग इट? दिस इज हाउ इट वर्क्स. Okay, so please tell your friends, tell your connection to to stay on your profile more than 30 seconds. So you can go, your profile can go in the suggestion part of in friend to friend. Okay, Yes. everyone is good? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Show personality in the sense, while being professional, let your personality shine through to make your profile stand out. It's not like कि आप corporate में obviously you have to maintain a professionalism, but you can't be kind of a strict or pretend to be someone else. ठीक है, let your personality shine through. Okay, if you are funny, then you can show yourself in over the LinkedIn that yeah, you are funny, but in a kind of in a professional manner. Okay, you can't be pretend someone else that yeah, I'm crazy or I'm funny enough in real, but not in the LinkedIn. Okay, so this is a kind of optional point. Okay, you can just add it out if you want. We are coming on the experience part. Describe your achievements, not just duties. Yes,
if you are into sales, why I'm talking about this sales part, because most of the candidates who come to an IT part, they are, from the sales background. They are changing their sales domain now into IT. So I guess 60-70% of the audience are into, was into sales. So don't describe just your duties, like your roles and responsibilities. Describe your achievements too. Okay, if I'm in the HR, I can't just write it down that, yeah, I have, my work is to, coordinate with the candidate, schedule interviews, onboarding, offboarding. No, I'm not saying that you can't mention that, but you should also mention the kind of numeric term. Okay, that, yeah, I have onboarded 50 candidates in this month. Getting it? I have placed 50 students last month. Okay, you have to use that numeric term, जिससे एक measurable, एक kind of कंपनी एक measure कर सकती है ना, आपको उसमें एक वैल्यू, एक इमेज सेट होती है that, yeah, काम तो सब करते हैं बट इसने जो किया है वो थोड़ा अलग किया है. ठीक है, so also mention your achievements too and in the numeric term. यूज बुलेट पॉइंट्स. यस, एक्सपीरियंस आप जब लिखते हो वहां पे आपको अपना एक्सपीरियंस सेक्शन में बुलेट पॉइंट्स यूज करने होते हैं. ये मैं तो आपको सीवी में भी कहती हूँ. अगर लेट सपोज हम किसी की सीवी लेते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे ही लिखोगे, है ना. आप ऐसा तो नहीं कि पूरा पैरा लिख दोगे ऐसे, है ना. यू विल यूज द बुलेट पॉइंट्स, राइट. सो यू हैव टू चूज द बुलेट पॉइंट्स इन द लिंक्डइन पार्ट टू, in the LinkedIn part. Customize descriptions for each role. Yes. Tailor your job descriptions to reflect the skills and experiences most relevant to your current career goal. आपको job descriptions in the sense, the job roles and responsibilities. Okay? तो ये जब आप लिखोगे अपने एक्सपीरियंस पार्ट में, तो आपको हर रोल का एक कस्टमाइजेशन लेना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आपने अगर 4 कंपनी में काम किया और आपने एज अ HR काम किया है, तो आप चारों में अपने सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन कर दोगे. आप काम ऑब्वियसली सेम ही होगा, है ना. 70-80% सेम ही होता है, 90% सेम होता है, बट दैट 10% जो आपका डिफरेंस रहता है, प्लीज कस्टमाइज दैट, ताकि वो थोड़ा अलग लगे, है ना. मे बी आपकी हो सकती है 2020 में जो कंपनी हो उसमें कुछ और काम हो. अपग्रेडेशन तो आती रहती है ना, है ना. पहले टेली और बिजी सॉफ्टवेयर था, नाउ वी आर इनटू SAP और वर्कडे, है ना, HR में. तो यू कैन मेंशन दैट पॉइंट टू. Add rich media in the sense you can mention the presentation, the videos, the reports or articles, अगर आपको अपना काम दिखाना है तो. ठीक है. Be detailed but concise. Detailing पूरी दो अपने काम के बारे में, but concise दो. इतना short हो but concise हो. आपको कोई इतना ये नहीं कि आपको पूरी explanation लिख देनी है, आपको just अपने expertise को convey करना है in the detail manner. इसमें किसी को डाउट कुछ एक्सपीरियंस पार्ट में कैसे लिखना है कैसे नहीं? एनीवन? नो मैम. सिर्फ 2 नो? नो मैम. No, ma'am. ठीक है. अब जिन ने नो बोला है, आई होप सबका लिंक्डइन प्रोफाइल एग्जैक्ट ऐसा हो जैसा मैं बता रही हूँ. कैन एक्सपेक्ट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. Yeah. Yes, Okay, ma'am. so now we are coming into skills and the endorsements part. ठीक है. Skills और endorsements आप कैसे लिख सकते हो? ठीक है. List relevant skills. ठीक है. Prioritize करो अपने skills part में. Where is the skills part? Here. Skills आपके नीचे आते हैं. This is the experience part, right? Here is your education and this is the skills part. Okay. So you can just add it out, change it. ठीक है. आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे skills mention करने हैं जो आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करने हैं एक्चुअली, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. लेट सपोज आप पावर बीआई में पावर बीआई में आप सीख कर रहे हो, ठीक है, बट आपको आपका पास्ट एक्सपीरियंस लेट सपोज एआई का था, आपको एआई में नहीं जाना, आपको पावर बीआई में जाना है. ठीक है. तो आपको इस तरह प्रायोरिटाइज करके लिखना होगा स्किल में कि पावर बीआई सबसे टॉप पे दिखे एंड एआई फिर आपके नीचे दिखे. ठीक है. सो यू कैन जस्ट आप सेक्शन भी चेंज कर सकते हो, सीरीज भी चेंज कर सकते हो. इसमें मैंने अगर ये टॉप पे लिखा है तो मैं इसे नीचे भी कर सकती हूँ, मैं इसे भी ऊपर कर सकती हूँ. ठीक है. तो ये आप कर सकते हो अपने स्किल सेक्शन में कि आप शोकेस वही स्किल्स करो जो आपके लिए प्रायोरिटी बेसिस पे इंपॉर्टेंट है. Endorse others. Yes, endorse colleagues for their skills and many will return the favor. ये endorsement and the recommendations होती हैं. ये मैं अभी आपको skills के बाद बताऊंगी. ठीक है. अपडेट योर स्किल्स रेगुलरली. यस, अगर जैसे जैसे आप सबने सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा है क्रोमा से, राइट, जो भी आप न्यू स्किल सीखते हो,
आपने ऐसा नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीखी है तो सिर्फ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जाके आप डाल दोगे वहां पे। आपको क्या डालना चाहिए? आपको डालना चाहिए SDLC, STLC, जीरा, सिलेनियम, मैनुअल, राइट, ऑटोमेशन, दीज काइंड्स ऑफ स्किल्स आपको उसको ब्रेक डाउन करके डालना होगा स्किल्स पार्ट में। अगर आपने एक्सेल सीखा है तो यू कांट जस्ट राइट इट डाउन द एक्सेल पार्ट, यू नीड टू मेंशन द VLOOKUP, HLOOKUP, पावर क्वेरी, this kind of, getting it? Yes, ma'am. Okay, I hope I'm not doing the boring part here. Everyone just listening. Nobody is asking question. इतना अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? मैम समझ में तो आ रहा है, और शायद मैंने अपनी एक नौकरी प्रोफाइल बना भी रखी है। हाँ हाँ, तो उसमें मैंने जो जो आपने चीजें बताई हैं वो मेंशन मैंने करी हैं। तो मैं नौकरी की नहीं, मैं लिंक्डइन की बात कर रही हूँ अभी। तो नौकरी तो मैं इसके बाद जाऊंगी। ये नौकरी नहीं करवाया है, तो मैं लिंक्डइन नहीं लिंक्डइन के लिए पूछ रही हूँ। जो भी अभी तक समझाया है, everyone is getting into their minds, in their brains. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हेलो हेलो। Yes. हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा तो टोटल बीपीओ में एक्सपीरियंस है, तो वो क्या मेंशन करना है वहाँ पे बीपीओ का, ना बिल्कुल जस्ट जो बिल्कुल करना है। क्योंकि क्यों नहीं करोगे? अच्छा वरना अच्छा गैप नहीं आ जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब जब से काम किया उसका फुल एक्सपीरियंस जो भी है वहाँ पे मुझे मतलब बिल्कुल अपडेट करना है ना। बिल्कुल। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ओके हाँ, तो अब मैं आती हूँ इंडोर्समेंट्स और रिकमेंडेशंस। ये क्या चीज होती है? ये चीज होती है, मैं दिखाती हूँ। किसी के प्रोफाइल में मैं दिखाती हूँ आपको। लेट सपोज शी इज द HR, हर नेम इज निकिता खोट, राइट। और हम इनकी प्रोफाइल में जाते हैं। इनको भी किसी ने रिकमेंडेशन नहीं दी है। रिकमेंडेशन का एक सेक्शन होता है, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो सबको नहीं मिलता। जब किसी को मिलता है तो वो नीचे शो होने लगता है। इसमें भी नहीं है। मैम, मुझे मिला हुआ है, मेरे में शो होता है। व्हाट्सएप प्रोफाइल नेम मिला है मैम या आपने लिया है? दिया था मैम, जब व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो उन्होंने ओके, क्रिएट करवाया था व्हाट्स योर उसको। नेम? मोहित शुक्ला। दिस वन? नो मैम, विच वन? यहाँ पर शो नहीं हो रहा मैम मेरा। नो इशू, हम किसी का देख लेते हैं एक बार। वैसे इतना कुछ ऑप्शनल होता है, बट अगर आप लोग फॉलो करोगे इसे, रिकमेंडेशन पार्ट को, सी, हाँ है। तो ये होता है एक रिकमेंडेशन सेक्शन जो आपके स्किल्स के नीचे होता है, ठीक है। एक होता है रिसीव्ड, एक होता है गिवन। रिकमेंडेशन कैसे काम करता है कि अगर आपको कोई रिकमेंड करता है, रिकमेंड कैसे करेगा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा, ठीक है, कि मोहित इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर QA इंजीनियर, ओके, ही हेल्प मी इन दिस पार्ट, इन दैट पार्ट, ब्ला ब्ला ब्ला। और ये कौन देगा? आपके कोई कनेक्शन में। इट कुड बी, इट कैन बी एनीबडी, ओके। और गिवन होता है जो आप किसी को देते हो, जो कि इसने दिया है, मोहित ने दिया है प्रिया को, दैट प्रिया इज नॉलेजेबल, आर्टिकुलेट एंड अ प्लेजर टू वर्क। She brings integrity, intelligence to her work. She is focused and goal oriented. तो मतलब उसने इसकी तारीफ की है। Let's suppose रिकमेंडेशन तारीफ ही होती है, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, हमने उसको रिकमेंड किया है या रेफरेंस दिया है, तो मतलब काइंड ऑफ बूस्ट अप किया है उसको कोई चीज। तो वो आप ले भी सकते हो, दे भी सकते हो,
ठीक है, आप अपने दोस्तों से कनेक्शन से बोलो कि मुझे रिकमेंडेशन दे, और आप भी उनको सेम चीज फिर रिटर्न करो फेवर में। समझ में आ गया रिकमेंडेशन एंडोर्समेंट पार्ट एवरीवन? यस मैम। रिकमेंडेशन लेना भी है और फिर देना भी है, ठीक है, बट ऐसे मत करना कि बिल्कुल वाइज एंड वर्सा हो जाए कि आप मुझे दे रहे हो और मैं आपको ही दे रही हूँ। ट्राई करो कि आपकी देने वाली ऑडियंस कुछ और हो, लेने वाली कोई और, ठीक है, क्योंकि वो फिर लिंक्डइन भी जो देखने वाला वही पागल नहीं है कि हाँ ये तुम तो सेम एक दूसरे को ही देते जा रहे हैं बस। ठीक है, ओके चलो ओके मैम। आते हैं फिर आपके हेडिंग एंड द बायो ऑप्टिमाइजेशन पार्ट। ठीक है, हेडिंग और बायो को हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, यहाँ तक तो जो होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको करना है। नाउ वी आर ऑप्टिमाइजिंग इट। ठीक है, हेडलाइन और बायो हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? इंक्लूड नंबर्स एंड रिजल्ट्स, यूज मेजरेबल टर्म्स, न्यूमेरिक टर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया था, इंक्रीज्ड सेल्स बाय 30% इन 6 months। ठीक है, अगर इसको सिर्फ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखनी होती तो क्या लिखता? I have increased, or I have done the work in sales part. I was very enthusiastic or blah blah blah. ठीक है, but वो सब तो words है. Where is the numeric term? Here's the numeric term. Okay, he increased the sales by 30% in just 6 months. Okay, so this is something जो HR देखेगी और उसको ये चीज स्टॉप करेगी उसके प्रोफाइल पे स्टे करने के लिए। ठीक है, make it easy to read, use short paragraphs, clear headings to make your summary and experience section easy to read। ठीक है, use keywords, वही सेम जो मैंने बताया आपको। ठीक है, जॉब टाइटल, स्किल्स, इंडस्ट्री टर्म्स पीपल विल सर्च फॉर। ठीक है, आपके नेटवर्क या कनेक्शंस में जो भी सेम स्किल्स के होंगे वो फिर आपके कनेक्शन में ऑलरेडी आते रहेंगे। पर्सनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट, आप जब किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हो, ठीक है, तो एक एक ऐड टू नोट आता है विच यू कैन सेंड। ये सिर्फ प्रीमियम में आता है, ठीक है, ये सब में नहीं आता, ये सिर्फ प्रीमियम में आता है। तो आप उनको भी कनेक्शन रिक्वेस्ट विद अ नोट भेज सकते हो जो आपके कनेक्शन में नहीं है अभी तक। ठीक है, लेट सपोज कोई आपके कनेक्शन में आ गया, आपने किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी एंड दे हैव एक्सेप्टेड इट। ओके, सो प्लीज कस्टमाइज अ काइंड ऑफ मैसेज। ठीक है, जब आप उनको वेलकम करोगे, ठीक है, नॉट जस्ट अ हेलो और अ हाय। ओके, यूज अ काइंड ऑफ अ ब्रीफ मैसेज जो ऐसा लगे कि हाँ आपको उनसे क्या काम है, या फिर यू आर डूइंग द वार्म वेलकम काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। कनेक्ट विद पीपल इन योर इंडस्ट्री, ये तो ऑटोमेटिकली होते ही रहेगा, बट हाँ आप करते भी रहना। इंगेज विद न्यू कंपनीज, हाँ ये आपको करना पड़ेगा। आफ्टर कनेक्टिंग, इंगेज करो न्यू कंपनीज के साथ, उनकी पोस्ट लाइक करके, कमेंट करके, उनके पोस्ट को रीपोस्ट करके, शेयर करके, राइट। जॉइन इंडस्ट्री ग्रुप्स। इंडस्ट्री ग्रुप्स कैसे? जैसे डेटा एनालिस्ट का अलग ग्रुप होगा, है ना, है उसमें पेजेस हैं, जैसे पेजेस होते हैं ना वैसे आप उनको फॉलो करो, वो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो पार्टिसिपेट करो उन ग्रुप्स में। ठीक है, और सिर्फ अपने डोमेन के करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंगेजमेंट एंड कंटेंट हम कैसे कर सकते हैं? ये जो कुछ चीजें हैं ये अब मेन आती है। पोस्ट रेगुलरली, आई एम नॉट सेइंग रेगुलरली, ये तो एक लिखने की बात थी, ठीक है, बट एटलीस्ट पोस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, एनीथिंग। ओके, एनीथिंग, whether it's related to your work, your personal experience, anything जो ऐसा लगे to keep your profile active। yes, ऐसा लगे कि आप एक्टिव हो लिंक्डइन पे, ऐसा नहीं सिर्फ आपने बना के छोड़ दिया हो कि ठीक है यार जब होगा होगा, जब जरूरत पड़ेगी, जब जॉब सर्च करेंगे तब हम उसको ओपन करेंगे। ऐसा नहीं, आप एटलीस्ट जैसे आप फेसबुक को आप 1 hour 2 hours देते होगे, इंस्टाग्राम को देते होगे, जस्ट गिव 10 to 15 minutes टू द लिंक्डइन पार्ट। ठीक है, इट शोज दैट या इट विल मेक इट विल कीप योर प्रोफाइल एक्टिव। राइट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। ठीक है, पब्लिश लिंक्डइन आर्टिकल्स टू शोकेस योर एक्सपर्टीज एंड बिल्ड योर प्रोफेशनल रेपुटेशन। आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। आपने पावर बीआई सीखा, आप डैशबोर्ड उस पर डाल सकते हो। ठीक है, आपने एसक्यूएल का कोई डेटाबेस आप बना रहे हो, उसकी 30 और 40 सेकंड्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने कुछ भी अचीवमेंट किया आप पोस्ट कर सकते हो। बी ऑथेंटिक, यस, share your personal stories or challenges you have overcome to make your post more relatable। ठीक है,
यूज हैशटैग्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक है। अगर आप पावर बीआई के उसमें डाल रहे हो, पावर बीआई का आप डैशबोर्ड डाल रहे हो, तो यू कैन यूज द हैशटैग्स ऑफ हैशटैग पावर बीआई, हैशटैग डेटा एनालिस्ट, हैशटैग डेटा साइंस, दीज काइंड्स ऑफ हैशटैग्स। एंगेज विद अदर्स, एंगेज आप कैसे करोगे, लाइक कमेंट शेयर, वही सेम चीज, ठीक है। टैग रेलिवेंट पीपल, आप टैग भी कर सकते हो रेलिवेंट पीपल को। लेट सपोज आपने क्रोमा कैंपस से डेटा एनालिस्ट का कोर्स कर लिया एंड यू गॉट द सर्टिफिकेशन, यू कैन पोस्ट द सर्टिफिकेशन ऑन योर लिंक्डइन एंड यू कैन टैग द क्रोमा कैंपस टू, ठीक है। सो दैट विल मेक अ काइंड ऑफ अ गुड कनेक्शन। पोस्ट एट ऑप्टिमल टाइम्स, यस, यू कांट जस्ट पोस्ट इट एनी टाइम, ठीक है। टिपिकल इन द मॉर्निंग आप करो या फिर आफ्टरनून में और मिड वीक में करो, क्योंकि वीकेंड्स में तो आई डोंट थिंक सो कोई देखता होगा, ठीक है। और मॉर्निंग्स में, यस, मॉर्निंग्स में जो एचआरस होते हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो एक्टिव रहती हैं। यूज पोल्स, ये आई गेस ये इतना नीडेड नहीं है, ठीक है। ये एक सेक्शन होता है बस जो आप कर सकते हो क्रिएट। यस, कस्टम लिंक्डइन यूआरएल, ये आपको बनाना पड़ेगा अपना कस्टम, ठीक है। आपने अगर लोगों का देखा होगा जो लिंक्डइन प्रोफाइल होता है, लेट्स सपोज अगर हम इनका देखते हैं, से ये कुछ भी है ना, मोहित शुक्ला तक तो लिंक्डइन में हमें लिख के देता है, उसके बाद वो कुछ भी हमारी यूजर आईडी का नंबर डाल देता है, ठीक है। कस्टम क्या होता है कि जैसे मैंने अपना क्या कर रखा है, मैंने कर रखा है, कहाँ गया मेरा ये, ठीक है। आई हैव यूज्ड माय नेम एंड द नंबर विच आई लाइक, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आकांक्षा सिंह से तो बहुत सारे आ रहे थे, वो यूजर नेम ले ही नहीं रहा था ये, ठीक है। तो फिर ये मैंने कस्टम करके डाला, मैंने सिर्फ 528492 ये सब नहीं डाला कुछ भी, और वो जो लिंक्डइन देता है मैंने उसी को कैरी ऑन नहीं किया। आप कस्टम यूआरएल रखोगे तो कल को आपको किसी को भी अपनी लिंक्डइन यूआरएल बताने में सोचना नहीं पड़ेगा, आप ऑन द स्पॉट बता सकते हो यार दिस इज माय लिंक्डइन, ठीक है। आपको ये नहीं कि मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करता हूँ या फिर ये करता हूँ, आपको याद रहेगा वो, ठीक है। सो यू कैन कस्टमाइज फ्रॉम हियर, एडिट पार्ट में जाके आप कस्टमाइज कर सकते हो। एडुकेशन एंड सर्टिफिकेशन, यस, लिस्ट ऑल द रेलिवेंट एडुकेशंस, हाईलाइट कंटिन्यूइंग एडुकेशन, ये आपको करना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेशन कोर्स कर दो, दिखाओ कि आप अब भी कर रहे हो। फीचर सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, फीचर सेक्शन आपका सबसे नीचे ही आता है, जिसमें आप अपना बेस्ट वर्क दिखा सकते हो। बेस्ट लाइक आपको अगर लगता है कि ये तो बिल्कुल मेरा बेस्ट पार्ट है, कोई भी आर्टिकल, प्रेजेंटेशन, कोई प्रोजेक्ट आप वहां पे डाल सकते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग पार्ट से हो, कोर्स कर रखा है तो आप अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हो, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स डाल सकते हो। ओके, अब हम आते हैं आपके जॉब प्रेफरेंसेस एंड करियर इंटरेस्ट्स पे। अपना आप कैरियर एक इंटरेस्ट लेके चलो, आपको पता चलना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए या फिर लोगों को पता चलना चाहिए दैट दिस इज योर प्रेफरेंसेस, ठीक है। एंड ऑल्सो लेट द रिक्रूटर्स नो दैट यू आर ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। देयर इज अ सेक्शन जो हमारे प्रोफाइल में आता है दैट वी कैन एडिट पार्ट, कि अगर हम ओपन टू वर्क हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसी में अभी आ नहीं रहा है। इसमें एक सेक्शन आता है जिसमें आप दिखा सकते हो दैट यू आर ओपन टू, हाँ ये रहा, ठीक है। आप अगर इसे क्लिक करोगे, ओपन टू फाइंडिंग अ न्यू जॉब, ओपन फॉर हायरिंग, ओपन फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड ओपन फॉर फाइंडिंग वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज, अगर मैं ये क्लिक करूंगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये सब मेरे से मांगेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको सेव करूंगी, अगर मैं इसको सेव करूंगी, सेव हो गया, सेव नहीं हुआ अभी। यहाँ पे एक आता है ना, बना आ जाता है ओपन टू वर्क, वो आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। आई गेस मैंने सिर्फ रिक्रूटर्स के लिए किया है, इसीलिए वो यहाँ ऐसा पे आ रहा है। एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ ओपन टू वर्क के पास नहीं, जो एक्चुअली क्या है कि मैंने सिर्फ रिक्रूटर्स को किया है, मैंने सबके लिए नहीं किया है, इसलिए मे बी वो विजिबल नहीं है। मैंने लिंक्डइन कनेक्शंस के लिए नहीं किया है, मैंने सिर्फ रिक्रूटर्स के लिए किया है। यहाँ पे ही आ जाता है, आपने सब लोगों ने देखा होगा ना, ये ओपन टू वर्क यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर पे लिखा आ जाता है। कोई भी आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करेगा तो वो देख पाएगा कि यू आर ओपन टू वर्क, यू आर सीकिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। इसको हम ज्यादा टाइम नहीं देते इस चीज पे। हाँ, इनेबल ओपन टू वर्क पार्ट, ये आप कर सकते हो। शेयर योर इंडस्ट्री ट्रेंड्स,
आप पोस्ट कर सकते हो अपने ट्रेंड्स, जो आप बात कर रहे थे ना, जो भी अपग्रेडेशन आ रही हैं मार्केट में, एआई से जेन एआई हो चुका है, चैट जीपीटी 4 से 5 हो चुका है, तो आप अगर आप उसमें वर्क करते हो, आपको नॉलेज है, यू कैन शेयर दैट ट्रेंड्स, ठीक है। रीपर्पस कंटेंट, अपने ब्लॉग्स, पॉडकास्ट एपिसोड्स रिलेटेड टू योर डोमेन आप पोस्ट कर सकते हो। आस्क क्वेश्चंस ये आप कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि थोड़ा चीजी लगता है ये वैसे, ठीक है। And be consistent, regularly engage with your network, post content to keep your profile active and visible. Okay, that's all about the LinkedIn part. Okay, anyone? I'm open for the doubts now. Everybody, any doubt? Anything you need to ask? Ma'am, can we Yes, have dear. can we have some summary of this what we have told in short? डियर, समरी तो सबकी खुद की होती है ना, मैं आपकी समरी आपको कैसे दूंगी? आपको पता होगा ना कि आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया है, कैसे किया है, क्या क्या एक्सपीरियंस है। What are the topics that what are the topics just now you have covered, ma'am? I'm saying that you need to highlight mainly we have to focus on which type of topic. Which type of topic? I'm not getting it. I'm not getting it, dear. Please come again. I'm asking that whatever you have just now explained it. I need to know. I need to focus only that part of which is the major part. What is the major part we need to focus? Everything which I said. Okay, ma'am. Yes. Okay. Now we are coming to the Naukri part. Yes. Is it possible that you can show me one's LinkedIn profile who is from SAP? One, I'm not getting Mohit again. मैम, क्या आप मुझे किसी की प्रोफाइल दिखा सकते हो जो जिसने अपनी सैप से रिलेटेड बना रखी हो लिंक्डइन पे? तो चलो मैं ऐसा करूंगी, अभी तो मेरे पास नहीं है, मतलब मुझे सर्च आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसा कर दूंगी कि जब मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगी इस चीज की, ठीक है, तो मैं हर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक एक लिंक्डइन प्रोफाइल अटैच कर दूंगी, ठीक है। सो यू कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम इट। यस मैम। गुड। ओके मैम। आकांक्षा, ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे शेयर करोगी आप? इन द ग्रुप, डियर। ओके, इन ईच ग्रुप, राइट? In the group you added, the placement group. Okay. Thank you. Okay. Now we are coming to the LinkedIn part. Visible? Visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. नौकरी Yes, ma'am. प्रोफाइल, हाँ, नौकरी प्रोफाइल आपको कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, ठीक है। मैंने नहीं किया बिकॉज मेरा काम है नहीं इसमें, है ना, बट मैं बताने की वो रखती हूँ, ठीक है, जो आप बता सकते हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रोफाइल पिक्चर, वही जो मैंने आपको बोली थी, जो लिंक्डइन पे लगा रखी है वो, ठीक है। इसमें बहुत सारे आपके सेक्शंस आते हैं, एंड ये आप बात मानो कि आपको हर सेक्शन भरना चाहिए, हर सेक्शन। आप एक सेक्शन ऐसा मत छोड़ो, ठीक है, जो आपने भरा ना हो। भले उसमें निल लिखो, आप नो लिखो, नन लिखो, वॉइड बिल्कुल छोड़ दो आप उसे, ठीक है, बट यू नीड टू मेंशन इट। You need to mention at least a no, at least a nil. Starting from your photo part, your location, ये तो सब कोई भरते, बिकॉज इसके बिना तो अपडेट ही नहीं होती है प्रोफाइल, ठीक है। Add the ability to join, ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे लिंक्डइन पे क्या होता है, ओपन टू वर्क, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ऐड टू अवेबिलिटी टू ज्वाइन, ठीक है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, कंपनीज वांट टू बिल्ड इंक्लूसिव टीम्स, हेल्प अस टू आइडेंटिफाई योर डिसेबिलिटी स्टेटस फॉर बेटर जॉब्स। आई नो ये थोड़ा रूड हो जाता है कंपनीज की साइड से कि हमें ऐसे क्यों पूछा जा रहा है, ठीक है, बट बी ऑनेस्ट एंड डिस्क्लोज एवरीथिंग। हमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। आई डोंट हैव अ डिसेबिलिटी, जस्ट सबमिट इट। एक सेकंड का काम था, है ना। तो ऐसी जो भी चीजें पूछी गई हैं, आप बता दो उन्हें। रिज्यूमे में हेडलाइन, मतलब जो समरी आपने लिंक्डइन पे डाली वो आप यहाँ पे भी डाल दो। जो स्किल्स आपने लिंक्डइन पे डाले सेम यहाँ पे डाल दो। एड एम्प्लॉयमेंट मतलब वर्क एक्सपीरियंस, जो वर्क एक्सपीरियंस सेम जो लिंक्डइन पे डाला आप यहाँ पे भी एड ऑन करके डालते जाओ, ठीक है। एडुकेशन, जो आपने लिंक्डइन पे डाला है सेम यहाँ पे। आईटी स्किल्स सेम। आईटी स्किल्स और नॉर्मल की स्किल्स में फर्क है, ठीक है।
If you are having a key skills of client handling, that is not an IT skill. Getting it? IT Yes, ma'am. skills सिर्फ IT का पार्ट आना चाहिए इसमें, ठीक है? Your projects you can add it on. Your profile summary. Your profile summary is the same part. आप दोनों जगह सेम आप मेंशन कर सकते हो, कुछ भी इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप दोनों जगह सेम मेंशन करो, ठीक है? अब आते हैं हम आपके लिंक प्रोफाइल्स के। आप हमें यहाँ पे अपने लिंक प्रोफाइल ऐड कर दो। वर्क सैंपल इन द सेंस गिटहब हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, वो ऐड ऑन कर दो, ठीक है? एड लिंक्स टू योर ऑनलाइन पब्लिकेशंस। आपके पास नहीं है, डोंट वरी, जस्ट नील ऐड कर दो। आपको जरूरी नहीं कि आपको लिंक डालनी ही डालनी है अगर मुझे भरना है तो, ठीक है? आप यहाँ पे नील मेंशन कर दो। प्रेजेंटेशन अगर कोई बना रखी, जैसे डैशबोर्ड्स हैं, कोई कुछ भी है, उसकी लिंक यहाँ पे डाल दो। पेटेंट्स नहीं है, ऑब्वियसली सबके पास नहीं होते, कंपनीज के पास ही होते हैं, नील डाल दो। सर्टिफिकेशन जो जो की है डाल दो। कैरियर प्रोफाइल में आते हैं आपके, करंट इंडस्ट्री कौन सी। आई नो कि आपने ये चीज यहाँ पे डाल रखी है एम्प्लॉयमेंट में, है ना, वर्क एक्सपीरियंस पूरा, बट अगर तब भी पूछा जा रहा है तो डालने में तो कुछ जा नहीं रहा हमें, ठीक है? करंट इंडस्ट्री डाल दो, जो जॉब चाहिए वो डाल दो, प्रेफर्ड शिफ्ट डाल दो, डे शिफ्ट चाहिए, नाइट शिफ्ट चाहिए, डिपार्टमेंट डाल दो, डिपार्टमेंट जो भी आपका होगा, डेटा एनालिस्ट का है तो IT डिपार्टमेंट हो गया। डिजायर्ड एम्प्लॉयमेंट टाइप डाल दो, कैसा टाइप आपको चाहिए, वर्क लोकेशंस डाल दो, कहाँ कहाँ के लिए आप ओपन हो। पर्सनल डिटेल्स में ये सब डाल दो, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी इन द सेंस वही आपका जो कास्ट आ जाती है, डिफरेंटली एबल्ड हो नहीं हो, कैरियर ब्रेक कोई तो नहीं रहा है, वर्क परमिट नील डाल दो अगर नहीं है तो कुछ भी, ठीक है? एड्रेस एंड द लैंग्वेजेस यू हैव नो, दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक सो कि ये आपका आधे घंटे से ज्यादा नौकरी प्रोफाइल लेगा। जो चीज आपको जो मेहनत लगेगी बस लिंक्डइन पे लगेगी थोड़ी बहुत, ठीक है? बाकी सब कॉपी पेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है? आप दोनों को ही अगर नौकरी को आप जॉब्स अप्लाई करते हुए आधा घंटा सिर्फ इसको ऑप्टिमाइज कर लो, ठीक है? आपको कोई नौकरी प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है, आपको कोई लिंक्डइन प्रीमियम लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा प्रोफाइल शोकेस हो, नहीं। आप ये सारी डिटेल्स फिल करके रखो, क्योंकि HR काफी उनके पास ऑप्शन ज्यादा है ना? अगर HR को चाहिए कि मुझे ना वही कैंडिडेट चाहिए जो दिल्ली लोकेशन का हो, और आपने यहाँ पे लोकेशन नहीं डाली, तो आपके प्रोफाइल तो भले ही आपने सब कुछ मेंशन कर रखा, वर्क लोकेशन आप डालना भूल गए, ठीक है? एक आपकी एड्रेस अलग होता है, एक वर्क लोकेशन अलग होते हैं आपके, है ना? आपने यहाँ पे डाला ही नहीं, तो मे बी आई डोंट थिंक सो इतनी मेहनत करने जाएगी कि आपको वो कॉल करे, कनेक्ट करे और फिर पूछे कि आप ओपन हो दिल्ली लोकेशन के लिए, नहीं करेगी, है ना? तो मेक हर इजी फॉर मेक इट इजी फॉर हर, उसको आप सब दे दो एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग। देन आप ये नहीं कि आप उसको थोड़ा बहुत दे रहे हो HRs को एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग यार एक कॉल तो आ जाए, 2 कॉल्स तो आ जाए, आप मत करना वो, आप सब दो, क्योंकि यू आर अ जॉब सीकर, दे आर द जॉब गिवर्स, राइट? दे आर द एम्प्लॉयर्स, they are having n numbers of CVs and number of profiles. यहाँ तक किसी कुछ डाउट, कुछ पूछना है इसमें नौकरी में? Yes, please ask. Yeah, Akansha, actually, if we are like seeking for someone who is from our related field, like if I'm seeking a job in my related field, then without purchasing the premium, it is really very difficult to reach out to that person. So I don't think so, Dina. I don't think so. No, actually, I was हमारे looking yesterday for the Okay. same, and I tried to reach out with several people over there, but it is not letting me allow to connect with anyone over there. So it is, Let in my me view, let me give you I do a not know reality whether it is check. with everyone. Yeah, it is with Yeah, let me everyone give you or a not. reality But check. There is, I don't think so. We can giving we are getting the benefits of 10% from the premium. We are having the premium. We are paying 3 to 4,000 for a LinkedIn accounts every month. Okay, just for the premium, just for the sake of it. And the only benefit we get is we can message for one time to those person who are not in a connection yet. Only that part. Okay, I don't think so any another benefit I have noticed in the LinkedIn premium. So I don't think so कि आपको करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कोई sorry to फायदा नहीं है। interrupt. You can yes. Yeah, actually, like as you are telling me that after purchasing the premium, you have only authorized to message that person only once, twice, or thrice. Okay. After Right. that, if those person are not responding, so it is totally waste. Yes. Is that correct? Yes.
so there is no me, right? Yes, you can only message that person for once. If they are not responding, you can't message them twice. Okay. Yeah, Yes. because I am just asking this question because in any field, like if you want to connect with related people, those who are already working or those See, who are you are having many here. options. You can get their mail IDs. You can post on their, you can comment on their post. You can, you can share your post, repost their post. Okay, everything. आप notice हो जाओगे, ऐसा नहीं है. ठीक है, आप उनके कमेंट पे कमेंट करो, उनकी मेल आईडी रीच आउट करो. देयर इज मेनी ऑप्शंस. ओके, I'll plan that session also. Okay, to how to outreach to the HRs, right? I'll plan it soon. Okay, Yeah, you are and then you can absolutely right. have an idea for that. You are absolutely right, but what I have seen in that part as well, that if you want to follow those persons, so I do not know if they have good connections, like they are like 6,000 or 7,000 followers, so they are not letting you allowed to follow them as well. So that's why I'm just asking this question. I'm sorry. Okay. Wrong also. No, it's totally good. See, you are also having an option if you're if you're getting any kind of job opportunity, and you are just wishing or hoping for that. I wish I could get her mail ID or his mail ID to to mail my Yeah. CV, her phone number or something like that. Just go in the go on the Google. Okay, just write it down, that company name you have searched for, researched for. Okay, and you you got the HR name, right? Let's suppose her name is Seema, right? You can just call on that number, the website number of that company, and just whoever picks it up, just tell them that you need to talk to Seema regarding a job opportunity. You need you start to you need to start taking names of the HR, because you are getting it by the LinkedIn. अगर आपको Yeah. दिख रहा है कि हाँ, this is the job post posted by Seema of XYZ company, and I want to apply for it, but I'm not able to text her up. I'm not, she is not responding to my comment. She is not responding to anything of mine. Just go on the Google, paste that XYZ company name, calls on that website number, just, politely ask that, can I please, talk to Seema? Because see, अगर आप directly बोलोगे ऐसे कि मुझे HR से बात करवा दो, तो HR से वहाँ पे कितने भी सारे हो सकते हैं, है ना? तो you can take the name, directly name. Yeah. Actually, it's not about HRs. HRs are always available to talk with anyone. I'm just मतलब जैसे कोई भी पर्सन है, जैसे अब मेरा ही कोई फील्ड है, ठीक है, तो if I'm just approaching someone or like who is already working in that profile, like they have already for more than 10 or 12 years of experience. I'm just asking, I'm just saying about those people only. Like if you are willing to reach out to them, then it is really very difficult because they are just disabled. Yeah. But it's not easy with the premium part, yeah. It's not easy with the premium part too. Okay. Okay. Thank you for the clarification. Really appreciate it. Welcome, yeah. Okay, so now we are jumping on the ATS part. Okay. The last section of today's session. Okay, what is the full form of ATS? Binash? Pardon, Binash? Binash, I'm asking Binash. No, I don't know. You don't know? Sikandar, what is the full form of ATS? No, ma'am. No? Ma'am, can I tell? Okay, anybody? Anyone else? Applicant tracking system. Yes. What does it mean? ATS कभी किसी ने check नहीं किया अपनी CV का? कि what is my ATS score? Nobody? Could you please help out with this? Yes. I'm just about to doing it. Prachi, what is ATS, dear? Prachi. Yes, ma'am. What is ATS according to you? Ma'am, नहीं पता. नहीं पता. Okay. There is an app. Yes, I know. I remember. Actually, I don't forgot the name. So okay, there is it's not an app, dear. It's not an app.
ATS You can upload your is resume on. no, it's not an app, dear. ATS is just a kind of a software, okay? Yeah, software. Yeah. Can be modified with n number of people, n number of websites, n number of companies. It's just a software which gives a kind of a score to your CV. Okay, a score. Let's suppose अगर मैं आपका इंटरव्यू लेती हूँ तो I give you the score ना, the MCQ test में किया, you got 20 out of 30 or blah blah blah. So ATS is a software जो आपको स्कोर देता है, ठीक है? Whether your CV is 80 out of 100, 70 or 19 out of 100, ठीक है? And it's very in demand in kind of अगर जो भी मुझे आप CVs देते हो, आपको कौन क्या लगता है कौन वो स्क्रीन करता है? वो ATS करता है. मैनुअली पॉसिबल नहीं है ना 100 और thousands of CVs स्क्रीन करना. So ATS does that for us. Let me share my screen again. Visible? Yes, ma'am. Visible? Okay. So we are here. Yes. Silence, please. It's a kind of a AI tool which screen our resume according to the description, job description, JD. Right. Right. Bhavna, you have joined late, I guess. Yeah, I've just joined. I just forgot this Okay. session. Okay, no issue. I'll share the recording also in the group. You can check it out. Okay, so ATS score, their functions and the benefits we are about to discuss right away. ATS, the full form of ATS is Applicant Tracking System. आपको दिखता होगा ना कि आपने एक ऑर्डर किया है ना, so there is a tracker which comes, है ना, shipped, in the transition, delivered, right? ये सारे एक लेवल्स होते हैं, है ना? तो वैसे ही CV का भी आपका एक लेवल होता है. Applied, shortlisted, either it's rejected or in the screening round, first round completed, interviewed, feedback pending, shortlisted, these kinds of level, है ना? ये होता है. तो ये जो ATS होता है ये कंपनी के पास होता है एक्चुअली, ठीक है? कंपनीज के पास मोस्टली होता है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर ये अपने हिसाब से बाय करते हैं, है ना? और वो अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं. मॉडिफाई कैसे कैसे करते हैं? अगर लेट सपोज एक ATS है, ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे पार्ट होंगे जो कंपनी डालेगी. लेट सपोज अगर कंपनी डेटा एनालिस्ट देख रही है तो वो क्या क्या डालेगी? वो अपने हिसाब से डालेगी, पाइथन डालेगी, एक्सेल डालेगी, है ना? अगर किसी वर्कडे कंपनी में मैंने सीवीज भेजे वर्कडे बच्चों के लिए तो वो अपने हिसाब से की स्किल्स डालेगी, वो अपने हिसाब से स्किल्स गैप का आइडेंटिफिकेशन डालेगी, लोकेशन का इशू डालेगी, सब कुछ अपने हिसाब से डालेगी. उसे क्या चाहिए? उसे अगर चाहिए 2023, 24, 25 के ग्रेजुएट्स उसको चाहिए, ठीक है? तो ATS में जो भी सारे सीवीज होंगे ना उसमें से शॉर्टलिस्ट सिर्फ वही सीवीज होंगे जो 23, 24 एंड 25 ग्रेजुएट. उसने अगर डाला है लोकेशन वेस्ट बंगाल चाहिए तो सिर्फ वेस्ट बंगाल का अगर सीवी सिर्फ एक ही है ना तो वो एक ही शॉर्टलिस्ट होगा और उस एक का ही इंटरव्यू कंपनी करती है, ठीक है? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है? और वो ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडमली डालती है, वो अकॉर्डिंग टू द JD ही डालती है. इसीलिए मैं आपको JD पहले देती हूँ, है ना? जो आपको जॉब पोस्ट मिलती है, जस्ट गो विद द JD एंड यू नीड टू मॉडिफाई योर CV एवरी टाइम यू अप्लाइंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज. क्योंकि हर बार जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपकी जो वर्क एक्सपीरियंस है, भले आपने HR में काम कर रखा है 4 कंपनीज में, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चारों में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम लिखोगे. तो सेम ऐसा ही भले आपने 4 जगह डेटा एनालिस्ट की जॉब पे अप्लाई किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चारों जगह सेम CV अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको चारों का JD एक बार पढ़ना पड़ेगा कि अगर उसने मांगा कि यार मुझे कोलकाता लोकेशन के लिए कैंडिडेट चाहिए, ठीक है, और आपकी CV में दिल्ली लिखा है, ठीक है, बट यू आर ओपन टू कोलकाता, सो व्हाई डोंट यू जस्ट एड इट अप टू कोलकाता. आप डायरेक्टली अपना लोकेशन, करंट लोकेशन कोलकाता डाल दो, इट विल बी इजी ना. अगर आप खुद ओपन हो उस लोकेशन के लिए, इधर ये तो आप अप्लाई मत करो. अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो इस मैनर में करो कि कोई चांस ही ना छूटे कि कंपनी आपको रिजेक्ट कर पाए या फिर ATS आपको रिजेक्ट कर दे आपके प्रोफाइल को. Got it? Everyone got it? यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है.
Yes, तो ma'am. अब Yes, ma'am. हम करते हैं. ATS score software is designed to evaluate how well a resume or a job application matches a job description. ठीक है, आपका CV आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करना चाहिए. अगर जेडी में लिखा है उसे वी लुकअप एच लुकअप चाहिए और आपने सीवी में लिख दिया एक्सेल, नहीं होगा शॉर्टलिस्ट. अगर जेडी में लिखा है वी लुकअप एच लुकअप तो आपको वी लुकअप एच लुकअप सीवी में लिखने में क्या जा रहा है? आपका 5 मिनट का काम है एडिट करने का, है ना. आप एक्सेल हटा के वी लुकअप एच लुकअप कर दो, भले ही वी लुकअप एच लुकअप एक्सेल का पार्ट है, बट ये मशीन्स नहीं समझती हैं, है ना. अगर कोई मैनुअली चेक कर रहा है तो वो समझ जाएगा कि हाँ यार वी लुकअप इसको एक्सेल मतलब आता है, बट ये मशीन नहीं समझती है. It mimics the behavior of your actual ATS software used by the companies to filter and rank applications based on keywords, formatting, and the relevance GD. Got it? यहाँ तक सबका? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Everyone is. Yes, ma'am. Yeah. Okay, just allow me one second, okay, to get my charger. Just 1 second, guys. No issue, ma'am. Okay, thank you for waiting. अब हम आते हैं आपके कोर फंक्शंस पे. व्हाट आर द कोर फंक्शंस ऑफ ATS कोर सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो हियर आर लाइक आई गेस 5 कोर फंक्शंस जो एक ATS सॉफ्टवेयर का होता है. अगर आप इसको समझ गए तो आपका JD, आपका CV कभी भी जस्ट बिकॉज ऑफ ATS रिजेक्ट हो ही नहीं सकता है. पॉसिबिलिटी नहीं है. अगर आप इस एल्गोरिदम को समझ गए तो आप कभी भी अपना CV रिजेक्ट करवा ही नहीं सकते हो, या फिर ये सुन ही नहीं सकते हो HR से कि आपका CV रिजेक्ट हो गया जस्ट बिकॉज हमने उसको अच्छा नहीं पाया है या फिर ATS ने रिजेक्ट कर दिया. या तो आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, या तो फिर कंपनीज ने प्रोफाइल ज्यादा अच्छी देख ली होगी कंपटीशन में, ठीक है, बट इस वजह से नहीं होगा कि आपके CV में स्किल्स ही नहीं थे. इसीलिए अगर आप JD पूरा गो थ्रू करके अपना CV बना रहे हो ना, तो हो ही नहीं सकता कि ATS आपका CV रिजेक्ट करे. फर्स्ट आते हैं हम, आपका जो मेन होता है बिल्कुल कोर फंक्शन, दैट इज कीवर्ड मैचिंग. ठीक है, ATS कोर्स स्कैन्स द रिज्यूमे फॉर कीवर्ड्स दैट मैच विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. सेम जो मैंने चीज बोली अभी. ठीक है, एग्जाम्पल, जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा है लुकिंग फॉर अ कैंडिडेट विद एक्सपर्टीज इन पाइथन, डेटा विजुअलाइजेशन एंड मशीन लर्निंग. उसने एंड लगाया है, गौर करना, और नहीं लगाया, एंड लगाया है. एंड और में फर्क पता है ना. एंड मतलब चाहिए ही चाहिए, और मतलब ऑप्शनल हो जाता है. तो एक रिज्यूमे में उस बंदे ने ये लिखा, उस कैंडिडेट ने ये लिखा है, मेंशन किया रखा है पाइथन एंड डेटा एनालिसिस, बट उसने मशीन लर्निंग नहीं लिखा है. ठीक है, और ATS इतना इतना समझदार तो होता नहीं है कि वो समझ जाए कि नहीं यार चलो इसको पाइथन और डेटा एनालिसिस तो आता ही है ना. ठीक है, हालांकि डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस इंक्लूड करता है क्या, विजुअलाइजेशन एंड मशीन लर्निंग समहाउ, है ना, करता है, बट वो इसको नहीं समझेगा और वो इस रिज्यूमे को लोअर स्कोर देगा ड्यू टू अ मिसिंग कीवर्ड मैच. तो इस हिसाब से CV हो जाएगा रिजेक्ट. ठीक है, तो अगर JD में लिखा है कि उनको ये चाहिए तो प्लीज डू मेंशन ऑल 3 पॉइंट्स. आपका क्या जा रहा है इसमें, अगर आपको आता है आप मेंशन कर दो. गेटिंग इट एवरीवन? ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. एवरीवन? Yes. Yes. ओके, Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट पे आते हैं, दैट इज फॉर्मेटिंग. ठीक है, ATS इवैल्यूएट करता है रिज्यूमे फॉर्मेटिंग दैट इफ इट्स ATS फ्रेंडली और नॉट. ठीक है, एक रिज्यूमे है, उसने एक टेबल फॉर्मेट यूज कर रखा है.
अपने हेडिंग्स पार्ट के लिए इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्सेस. Please, I insist, I request everyone, please do not use a table format in your CV. Ever, ever. कभी भी नहीं. मैंने कई बच्चों को देखा है एजुकेशनल वो क्वालिफिकेशन का टेबल बना लेते हैं कि हाँ 12th 10th एक रो में, 12th एक रो में, फिर सीजीपी का अलग कॉलम बना लेते हैं, ग्रेजुएशन ईयर का एक अलग कॉलम बना लेते हैं. डोंट डू इट. ठीक है, एक फॉर्मेट एक तरीका होता है. अपना MS वर्ड पे आप बनाओ, CV PDF में कन्वर्ट करो. I don't think so you can go for any kind of template nowadays. Keep it simple, क्योंकि आपका CV कोई भी देखेगा नहीं. आप समझो, पहले होता था कोई देखता था कि हाँ यार इसका CV दिखने में अच्छा लग रहा है, बट वो कोई देखेगा भी नहीं. उस सबको मतलब है उस CV के अंदर क्या क्या है. ठीक है, तो ATS क्या होगा, मे नॉट बी एबल टू रीड द कंटेंट जो आपके बॉक्स में होगा, टेबल फॉर्मेट में होगा. ठीक है, और वो रिड्यूस कर देगा इफेक्टिवनेस ऑफ द रिज्यूमे, और फिर वो अगेन वो लोअर स्कोर इसको दे देगा. ये समझ गए दोनों. थर्ड पे आते हैं, रैंकिंग एंड स्कोरिंग. ठीक है, ATS असाइंस करता है स्कोर आपका 0 टू लेके 100 के बीच में, टू इंडिकेट द रिज्यूमे इज मैच विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. एग्जाम्पल, C का स्कोर आया है 82. यस, प्लीज म्यूट योरसेल्फ अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ नॉइसेस है तो. हाँ, अगर रिज्यूमे C है, कोई लेट सपोज कोई XYZ कैंडिडेट है, उसका CV स्कोर करता है 82% और ABC कैंडिडेट का करता है 65%, तो वो इसका इंटरव्यू लेगी कंपनी जिसका 82% है, क्योंकि इसकी परसेंटेज ज्यादा आई है. ठीक है, तो रिज्यूमे C इज रैंक्ड हायर एंड मोर लाइकली टू बी शॉर्टलिस्टेड. इसीलिए आपका ATS स्कोर मैटर करता है. फिर आता हम आपके स्किल्स गैप आइडेंटिफिकेशन में. ठीक है, ATS हाईलाइट्स करता है मिसिंग स्किल्स, क्वालिफिकेशन टू हेल्प द जॉब सीकर्स. जॉब सीकर्स आर हु, एम्प्लॉयर्स, रिक्रूटर्स, improve their resumes. ठीक है, अगर ATS कहता है कि इसकी CV में SQL मिसिंग है, ठीक है, और आउटकम ये निकल के आता है कैंडिडेट अपडेट्स द रिज्यूमे विद रेलेवेंट SQL एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग, मतलब ये बताता है ATS आपका ये सॉरी मैंने ये रिक्रूटर की हेल्प से बोल दिया. जॉब सीकर्स, सॉरी नॉट द एम्प्लॉयर्स, जॉब सीकर्स आर अस, यू, राइट. तो ATS आपकी स्किल्स गैप आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करता है. ठीक है, अगर आप JD और अपना CV दोनों डालोगे ATS में, ठीक है, और उसको आप हेल्प मांगोगे उससे कि हाँ प्लीज मेरा स्कोर बताओ, तो वो ऐसे बोलेगा कि हाँ आपके CV में SQL मिसिंग है. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपना रिज्यूमे में रेलिवेंट SQL का एक्सपीरियंस हो या फिर ट्रेनिंग डाल सकते हो. ठीक है, सो दिस इज फॉर अस. यस, ये आपको हेल्प करेगा. ATS इसलिए भी आपको हेल्प करता है, वो दोनों तरीके से काम करता है, जिस तरीके से आप चाहते हो उससे. अब आते हैं सजेशंस फॉर ऑप्टिमाइजेशन. ठीक है, ATS provides real time recommendations to improve resume match with the formatting part. ठीक है, एग्जाम्पल अगर ATS सजेशन दे रहा है, रिप्लेस एक वैग्यू टर्म है वर्कड विद सॉफ्टवेयर. वर्कड विद सॉफ्टवेयर, ये बहुत सारी सीरीज में ऐसा देखने को मिला है. आई हैव वर्कड विद सॉफ्टवेयर, आई हैव वर्कड इन दैट कंपनी, नॉट कंपनी, वर्कड इन दैट टेक्नोलॉजी और ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ दैट इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. वर्कड मतलब काम तो सभी करते हैं. सॉफ्टवेयर, विच सॉफ्टवेयर. ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन जस्ट राइट इट डाउन, डेवलप एप्लीकेशंस इन जावा. जस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज, है ना, ताकि वो एक क्लियर इमेज बने कि ओके आपने डेवलप किया था. वर्क तो सभी करते हैं. एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मतलब एप्लीकेशंस इसने डेवलप की थी जावा में, जावा सॉफ्टवेयर में. तो आउटकम क्या निकलेगा इसका, ये बूस्ट करेगा ATS स्कोर आपका और रिक्रूटर की एंगेजमेंट. ठीक है, इसमें पांचों पॉइंट्स में किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है? मैम इसमें हम फिर मतलब जैसे डेवलप वर्ड है तो हम ये बार बार रिपीटेडली लिख सकते हैं, जैसे इस कंपनी में भी करी है, लास्ट कंपनी में भी बिल्कुल. करी है, तो डेवलप ऐसे डेवलप मल्टीपल. इज अ नॉर्मल वर्ड ना, इज अ एक्शन वर्ब. वो तो हर जगह यूज कर हाँ, सकते हो. अच्छा. और मैम अगर जैसे हमने पाइथन और सीक्वल और एडवांस एक्सेल तो करी है लेकिन मशीन लर्निंग करी नहीं है हमने, लेकिन जो जॉब्स आ रही हैं वो आ रही हैं पाइथन सीक्वल और एडवांस एक्सेल वगैरह नहीं चाहिए उनको, और मशीन लर्निंग या डेटा साइंटिस्ट की जॉब्स है तो उसमें मशीन लर्निंग चाहिए, तो फिर मेंशन करना तो ये सही नहीं रहेगा ना.
तो अप्लाई ही मत करो ना वैसी जॉब्स के लिए। फिर अगर आपको लग ही रहा है कि वो बिल्कुल उसमें मांगा ही मांगा है, तो आप अप्लाई ही मत करो, सिंपल और है ना। अगर जैसे हम नौकरी पे वहां पर तो जैसे naukri.com है, उस पे तो हमें सिर्फ एक ही रिज्यूमे अपलोड करना होता है, उसके बाद हाँ हम मल्टीपल पे अप्लाई करते हैं, तो मतलब हर हाँ पे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाता है, बट सी वो मैं एक सेशन लूंगी, ठीक है। आपको मैं ये नहीं कह रही बार बार रिज्यूमे अपलोड करो, बार बार चेंजेस करो, और आपको बिल्कुल करना पड़ेगा वो तो हर बार, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल सिमिल्टेनियसली आप हर कंपनी, क्योंकि देखो अगर हम अप्लाई करने बैठते हैं नौकरी पे, तो हम 10 मिनट में नहीं भी तो 30 कंपनी से अप्लाई कर देते हैं, राइट। हम बिल्कुल फ्रिक्वेंटली करते रहते यस हैं। मैम। तो प्लीज यूज दैट हाँ कीवर्ड्स जो आपकी सीवी में है, बस ये है इसका चीट कोड, ठीक है। अगर आपके सीवी में सिर्फ ठीक। पाइथन, इसमें एक्सेल और एसक्यूएल है, तो सिर्फ इसका उन्हीं जो जॉब से अप्लाई करो। हाँ ठीक है। और जो मैम भी एक्स्ट्रा एटीएस वर्ड आ फ्रेंडली रहा है उस पर अप्लाई ही मत करो आप। एटीएस फ्रेंडली जो टूल्स हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं, उसके अंदर मतलब कोई सॉफ्टवेयर हमारे को 60 दे देगा और कोई सॉफ्टवेयर हमारे को 70 देता है, वो तो इसलिए मतलब दे हम देता है डियर, क्योंकि आप जेडी अपलोड करते हो उसमें। वो आपको जस्ट एक एक काइंड ऑफ एक स्कोर दे देता है, अपने बट कौन से अच्छा कंपैरिजन में देगा, इसके लिए तो आपको जीडी डालना पड़ेगा ना वहां जेड पर। भी डालना पड़ेगा। और मैम कुछ इसमें जो सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो पेड आते हैं कि अगर आपको इसके अंदर करेक्शंस चाहिए नहीं रिज्यूमे वो में सब मत करना, बिल्कुल भी फायदा नहीं नहीं है, करें ना, मत ठीक है। करना, ठीक है। तो लास्ट मैम अगर पॉइंट कोई पे यस। रिकमेंडेड साइट हो ना आपके पास, एटीएस फ्रेंडली जो रिकमेंडेड साइट हो, तो वो भी आप मेरे को बता श्योर श्योर, आई एम हैविंग सम 8 to 10 साइट्स जो मैं शेयर कर दूंगी आपको विद द रिकॉर्डिंग, ठीक ठीक है। ठीक ओके, है मैम। बेनिफिट्स, हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं। बेनिफिट्स क्या है इसके यूजिंग एन एटीएस स्कोर सॉफ्टवेयर। पहला, improve chances of passing actual ATS filters used by the employers. Employers कौन है अब यहाँ पे? Companies. Second, helps tailor resumes to a specific job description. एक tailor resume आपको help एक कर देगा कि हाँ आप इस, अगर JD में लिखा है SQL और आप में CV में नहीं लिखा आपने, तो आप डाल दो, तो एक tailor resume आपके लिए वो help करता है बनाने में। सेव्स टाइम्स इन द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। हाँ सी, अगर आपने जेडी से बिल्कुल मैच करके ही अपना सीवी बनाया है, तो आपको उसमें जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें आपको बहुत सूद नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब मुझे जस्ट डायरेक्टली कॉल ही आएगी, क्योंकि आपका फिर वो रिजेक्शन वाला सीवी, रिजेक्शन वाला सीन नहीं होगा, ठीक है। Provides objective feedback to improve application materials, yes, and increases applicant confidence in the resume strength. Obviously अगर आपका resume बिल्कुल बेस्ट है, तो आप कहीं भी फॉरवर्ड करने में आपको कॉन्फिडेंस देता है वो कि हाँ मेरा तो हो ही जाएगा, राइट। तो इसीलिए ये जरूरी है, बेनिफिट्स है मतलब इसके। So we are done with this ATS part 2. We have completed LinkedIn, Naukri and this ATS today. Again, I'm open for the doubts. Okay. Everyone, कोई डाउट, कुछ पूछना है? नो मैम। नो, बोरिंग है, कुछ कुछ बोल ही नहीं रहा है कोई, मैंने बोर कर दिया? No, ma'am. No, नो ma'am. मैम, इट्स नॉट बोरिंग, session is very good, we have learned lot of things. Just Thank now you, I'm dear. updating my just now I'm updating my LinkedIn profile. You can share to By me changing the link, background. okay, and then I can review it once. Okay, ma'am. Thank you so much, Okay. ma'am. Okay, then we are Yes, ma'am. ending up this session with the kind of a few learning points which can help you, I guess, if it's help. Ma'am, Okay. ATS friendly websites, ma'am, can you please tell us? Sure. I'll just do it. Okay. Let me just save this recording once. Okay. And I'll post this recording with the ATS websites too, which you can, filter it out, like all the, websites, and it will be, out of premium. उसमें premium आपको कुछ भी pay नहीं करना. नहीं करना, okay. So that will become like in our WhatsApp group or Yes. In the placement groups you are added. the chat. Okay. Okay. The broadcast group, which is Can drop Yes. it. You can drop it in placement group, ma'am. Yes, I'll do it. Yeah. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Everyone having a great day. Okay. And please, Thank you, ma'am. ये सब आप देख लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेना, बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए।
Okay then. I am. Good day. Thank you. Hello, ma'am. Have a